Good morning, everybody. I wish you all a healthy and joyful morning. I know it is difficult to spare time for any webinar or seminar, particularly in the hard times of pandemic. But believe me, this morning is going to be something special for all of us. To me, it appears that it is going to help all of us in changing our perception towards the pandemic. Hi, this is KP Singh, PGT Geography from Navyug School, Vinay, and I welcome you all to this real enlightening webinar. This webinar is an initiative of the Education Department under the effective leadership of one of the most dynamic director of NDMC, Shri DP Singh. It aims to spread positivity around us. It is an effort to create positive sentiments within us so that we can fight this pandemic in a more meaningful manner. It is my request to all of you to listen with an open mindset. Then only we will be able to make ourselves stronger. Now, over to Dr. Dinesh Madan. Thank you so much, KP sir. Uh, First of all, very good morning, everyone present here, and I hope everybody is fine, not only emotionally but also physically. Dear friends, whenever we do take any initiative, there is always a vision or a purpose behind it. What is the purpose behind holding this webinar? We took this initiative to hold this webinar because what do I find is that people are passing through this depressing phase. Because of this depression, their oxygen level is declining and they are treating the oxygen instead of giving the treatment to their mental health. And that's the reason that today we are inviting one of the most prominent and eminent psychologists, Mrs. Dr. Geetanjali Kumar. On the other hand, we are having another session that is about physical well-being. Because you are seeing that if you talk about like hospitals, there is a very scary situation in hospital. There is no beds, there is no oxygen, there is no ventilator. And people think that it's better not to go to the hospital. It's better if we are taking treatment at home only. Because if we are going to the hospital, whether we would be back or not, there is an uncertainty. And there are so many controversies about the treatment also, as we do find that there are so many people, they claim themselves to be the doctor. And if we talk about like, there are so many videos, we talk about like social media tools, there are so many videos, they are talking about the treatment of COVID-19. But are they authentic? Can we just rely on them? And that's the reason only that we are holding this webinar to discuss that what is the actual treatment of COVID-19? What are the precautions to be taken? What is the isolation? What is the effectiveness of the vaccination? There's so many questions about it. So we have got with us an eminent doctor, medical practitioner, Dr. Sumit. So thank you so much, Dr. Sumit. You are sparing your most precious time during this pandemic for this webinar. And of course, Dr. Geetanjali Kumar. As today's session of this webinar is divided in two parts. In one part, we would be discussing about the medical support, and in the second part, we would be discussing about mental health. So whatever we are doing, of course, this is because of the inspiration of our director, sir, that your concern and your sensitivity towards the well-being of everyone, that is really commendable, sir. Thank you so much for inspiration and giving us guidance to hold this webinar. Thank you so much, sir. मतलब ये तो मेरा एक सौभाग्य है कि आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका डायरेक्टर साहब ने दिया है
मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को अंडरलाइन बहुत सारी बीमारियां चलती हैं जिसकी जानकारी उनको नहीं रहती है। कोविड से पहले कितने लोग जानते थे कि सीआरपी नाम का कोई टेस्ट होता है? सीआरपी हमेशा से एक मार्कर रहा है इन्फ्लेमेशन का। सीआरपी हमेशा से एक मार्कर रहा है लॉन्ग टर्म आपके हार्ट के स्टेटस को बताने का। लेकिन कोविड में हमें मालूम पड़ा कि हाँ, सीबीसी कराना चाहिए, हीमोग्राम कराना चाहिए, सीआरपी कराना चाहिए, मार्कर्स कराना चाहिए। अब तो बच्चे बच्चे इसको जान गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब ट्रीटमेंट के दौरान हम उनको कहते हैं कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराइए, तो वो काफी ज्यादा हाई रेट में मिलता है। तब उन्हें मालूम पड़ता है कि अच्छा, उनको तो ब्लड प्रेशर भी है। तो इसके बहुत सारे कारण है, इसको वैक्सीनेशन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। राइट सर। हाँ सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन ही है कि जैसे ये वैक्सीन जो तैयार की गई, ये पुराने वाले जो 2020 में जो आया था उसके हिसाब से किया गया, लेकिन इस बार जो सिम्टम है, क्योंकि ये म्यूटेंट कर गया है, तो क्या ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है? देखिए, वैक्सीन किसी भी स्ट्रेन के लिए 70 to 80% उसकी एफिकेसी है। 70 से 80% लोगों में वो काम कर रही है। हम लोग भी उनमें से हैं। जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, आप देखिए, जिन्होंने भी लगवाया है वो लोग भी उसी में से हैं। 20% में फिर भी ये चांस रहता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी के साथ आज तक नहीं बनी। अच्छा सर, कुछ लोगों को एप्रीहेंशन है इस वैक्सीनेशन को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट लाइक लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज एंड जो डायबिटिक पेशेंट और बीपी पेशेंट, so they are apprehensive of this vaccination and they are not eagerly accepting to have vaccination. गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जिनको इस वैक्सीनेशन से अभी दूर रखा गया है वो है 18 से कम उम्र के लोग, दूसरा लैक्टेटिंग फीमेल्स और प्रेग्नेंट फीमेल्स। खैर, हेल्थ एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि ये लाइव वायरस तो है नहीं, तो कोई इफेक्ट होगा नहीं प्रेग्नेंट फीमेल्स पे इसका, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द फीटस। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से अभी इन लोग को इनसे दूर रखा गया है। इसके अलावा जिनको बीपी, शुगर या XYZ कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी है, वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कंसल्टेशन के साथ बिल्कुल ये वैक्सीनेशन ले सकता है। वैक्सीनेशन सेंटर में आप जाके जो वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं उनको आप जरूर बताइए कि मुझे बीपी है, शुगर है या कोई दूसरी बीमारी है, तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ये वैक्सीनेशन बिल्कुल लिया जा सकता है। ओके सर, जैसे आपने अभी कहा कि वी हैव गॉट ओनली टू टूल्स टू सेव फ्रॉम दिस वन इज मास्क एंड द अनदर वन इज वैक्सीनेशन। सर, मास्क के लिए जैसे कि अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसमें 2 मास्क लगाना जरूरी है इस टाइम, सिंगल मास्क नहीं, डबल मास्किंग। लेकिन सर उस केस में बिकॉज वी आर टेकिंग आवर ओन कार्बन डाइऑक्साइड, तो इज इट नॉट हार्मफुल टू अस? ये सारी चीजें सिचुएशन के हिसाब से अब कही जा रही हैं। एक समय था जब कम्युनिटी स्प्रेड नहीं था, आज के टाइम पे ये इतना मैसिव स्प्रेड हो चुका है। अब डिपेंड करता है कि मास्क कौन सा पहना जा रहा है और कैसे पहनना जा रहा है। सपोज करिए अगर कोई N95 मास्क पहनता है और उसने अपना नोज और माउथ सील कर लिया है, उसके ऊपर एक पिन होती है, उसको दबा के अगर हमने प्रॉपरली उसको पहना है, उसको चेक भी किया जा सकता है कि जब आप इनहेल करते हैं तो मास्क भी अंदर अंदर बाहर होगा। तो वो एक प्रॉपर तरीका होता है मास्क पहनने का। हाँ, अब ये देखने को मिला है कि जैसे डॉक्टर्स अगर आईसीयू में जा रहे हैं, कोविड वार्ड में जा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर से एक सर्जिकल मास्क पहन लेते हैं, जिसको वापस आने के बाद वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं एंड दे कंटिन्यू विद द इनर मास्क। अगर कपड़े के मास्क जो लोग पहन रहे हैं, जो कि N95 जिनको नहीं मिल रहा है, तो उनको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर आप क्राउडेड जगहों पे जाएं तो कपड़े के मास्क के ऊपर एक सर्जिकल मास्क एटलीस्ट लगा लें या 2 सर्जिकल मास्क पहन के जाएं। इससे आपका कोई गैशियस एक्सचेंज पे इफेक्ट नहीं होने वाला है, आपका सैचुरेशन ड्रॉप नहीं है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं, 2 मास्क लगा के अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापेंगे तो वो उतना ही रहेगा जो क्राइसिस का टाइम चल रहा है। तो अगर आप कपड़े वाला मास्क पहनते हैं, देखिए कपड़े वाला मास्क आपके डस्ट पार्टिकल के अलावा वायरस तो नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ, आज के टाइम पे जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है तो आप ट्राई करें कि कपड़े वाले मास्क के ऊपर एक सर्जिकल मास्क लगा लें, उसके बाद आप प्रोटेक्टेड हैं। ब्लोइंग एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि सांस छोड़ने की कैपेसिटी, जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो कोविड में जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उन लोगों में ये कैपेसिटी कम हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी मशीन आती है जिसको स्पाइरोमीटर कहते हैं, लंग एक्सरसाइजेज, जो बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं।
यस वो कर सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, बिल्कुल एक प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। चीजें मुझे बोलनी है। जी सर प्लीज। एक तो ये बोलना है कि आपने पूछा कि हम अपने टीचर्स को कैसे मोटिवेट करें जी वैक्सीनेशन कराने के लिए जो नहीं करा रहे हैं। जी तो बड़ा अच्छा फोरम है ये, 450 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। जी मैं मोटिवेशन की तो नहीं, लेकिन एक उल्टी बात करता हूँ। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, इन फ्यूचर में भी उन्हें कोविड इन्फेक्शन होने पे या उनके घर में किसी को होने पे जो आइसोलेशन या बाकी चीजों के लिए जो लीव मिल रही है, उस लीव से हाथ धोना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि चूंकि हमारी स्कूल का मैटर है, जहां कुछ ही दिनों में 2 या 3 महीने में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, तो हम उन बच्चों के हेल्थ को किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, सारे अपने टीचर्स को और नॉन टीचिंग लोगों को भी जो स्कूल में है, कि आप वैक्सीनेशन कराइए। अदरवाइज हमें इसमें कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन होते, आप अपने ऑफिस आते जाते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एनडीएमसी मुख्यालय में कौन आता है जाता है, बट बच्चों की सेहत के साथ हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे से समझ लें कि जो लोग नहीं करा रहे हैं, उनके लिए बहुत जल्दी अगले 10-15 दिनों में मैं कोई ना कोई टफ डिसीजन लूंगा, जिससे उन्हें पक्का पक्का प्रोफेशनली नुकसान होगा। पॉइंट 1। सेकंड, डॉक्टर सुमित, बड़े अच्छे से आपने चीजों को समझाया। एक दो क्वेरी मेरी भी है छोटी सी, कि जैसे लोगों को ये राय दिया जा रहा है कि आप स्टीम लीजिए, तो एक तो कितना फायदेमंद है और उसको लेने का सही तरीका क्या है। दूसरा, क्या गर्म पानी पीना, नॉर्मल पानी पीना, या ठंडा पानी पीना, या ठंडी चीजें लेना, वो कोविड को लेकर के कितना फायदे और कितने नुकसानदेह हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। स्टीम से रिलेटेड जो है सर, स्टीम लेना या फिर जो हम कहते हैं गुनगुना पानी, गर्म पानी लेना, इसके 2-3 अच्छी चीजें हैं सर। एक तो ये सूदिंग इफेक्ट देता है, जो सबसे कॉमन है। स्टीम कैसे लें? 10 मिनट के लिए आप स्टीम दिन में 2 से 3 बार जरूर लें। हाँ, ये ध्यान जरूर दें कि कहीं बर्न ना हो जाए। वो एक मोस्ट कॉमन इसका जो साइड इफेक्ट देखने को पाया गया है। और अब गर्मी का मौसम है, अगर इसको ढंग से ना लिया गया तो बर्न के चांसेस है। अदरवाइज स्टीम 2 से 3 बार लेना है। लंबी लंबी सांसों को इनहेल करके स्टीम लीजिए और गुनगुना पानी पीते रहिए। जहां तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात है सर, कुछ चीजें जैसे गिलोय हुआ और टर्मरिक हुआ, जो कि आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ पे यूज में आता है। लौंग हुआ, ये सारी चीजें गले को सूदिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि कोविड कुछ नाक में रह जाता है, गले में रहता है, फिर फेफड़े तक पहुंचता है। तो जिनको थ्रोट पेन और बाकी सिम्टम्स, उसमें ये जरूर आराम देता है। हाँ, बैलेंस्ड अमाउंट में लेना चाहिए। अगर आप काढ़ा ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में आप 7 से 8 बार काढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी दवाई का अगर बेनिफिट है तो उसके ओवर यूज से, और उसका अगर अच्छी मतलब क्वांटिटी में नहीं किया गया तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लिवर पे भी उसका असर जा सकता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है कि फीवर रेगुलर 102, 103 रहता है और डोलो 650 लेने के बाद भी वो फीवर डाउन नहीं आ रहा, then what to do in that case? ये इस बार का जो वेव आई है, इसमें बहुत एक कॉमन फाइंडिंग है। पहले माना जाता था कि 100.4 तक का फीवर कोविड का फीवर है। इस बार देखने पे पाया गया है कि 102, 103 और 104 भी बुखार जा रहा है, और पैरासिटामोल राउंड द क्लॉक लेने के बाद भी वो उतर नहीं रहा है। तो इस पे आप कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, और दूसरा एनसेड ग्रुप की दवाइयां अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ लें। उसमें बहुत सारी दवाइयां, नेप्रोक्सिन है, नाइस है, मेफ्टल फोर्ट है। ये 101 जब क्रॉस करता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो आपको एग्जैक्ट डोज बताएंगे कि कितने डोज में आपको इसको एसओएस बेसिस पे दवाइयां लेनी है। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर सुमित, ये है रिलेटेड जैसे पोस्ट कोविड केयर के। बहुत सारे हमारे कलीग्स ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ है और वो अब ठीक भी हो गए हैं, और अब वो दे आर गोइंग ट्रीटमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट। So in that case, they want to know कि what more precautions should they take?
आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड, विदेशों में इसे वर्ड दिया गया है लॉन्ग कोविड। हमने देखा है कि एक आइसोलेशन फेज हुआ, लोग रिकवर कर गए, उन्होंने अपना ड्यूटीज ज्वाइन कर ली। कुछ चीजों का हमें ध्यान देना है। हेल्दी खाना खाना नहीं छोड़ना है, हाई प्रोटीन डाइट नहीं छोड़नी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं छोड़ना है, एक्सर्शन अवॉइड करना है। और जो कुछ सप्लीमेंट्स का मतलब सर ये हो सकता है हम उसको ऑन एंड ऑफ रूप में लेते हैं। कुछ बेसिक आजकल देखने को पाया गया है कि लोग कोई भी 45 मिनट तक धूप में नहीं बैठता, ओजोन लेयर डेंस हो चुकी है, इसलिए विटामिन डी सबका कम है। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट जैसे देखने को है बॉडी पेन वगैरह, तो अगर आपके विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल रहेंगे, आप अच्छे अमाउंट में जिंक ले रहे हैं, तो उसके बाद आप इन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इलनेस का कहीं ना कहीं ड्यूरेशन बढ़ा है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि वायरस है, बहुत नोटोरियस वायरस है, म्यूटेट कर रहा है, उस अपना रूप बदल रहा है, बहुत सारे स्ट्रेन इसके आ चुके हैं। कुछ हमारे लोकल एरिया के म्यूटेंट्स हैं, कुछ बाहर से स्ट्रेन हैं। तो पहले 5, अगर हम होम आइसोलेशन एक एग्जांपल ले लें कि कोई पेशेंट होम आइसोलेशन में है, तो आप उसको मॉनिटर करिए पहले 5 दिन। तो इस इलनेस को डिवाइड कर दीजिए पहले 5 दिन। उस 5 दिन में सैचुरेशन, आपके सिम्टम्स और बाकी सारी चीजें आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताते रहिए। छठे दिन से सपोज करिए देयर इज अ सडन ड्रॉप इन सैचुरेशन, देयर इज सडन डिटोरेशन ऑफ एनी सिम्टम, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, अकॉर्डिंगली वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम लोग, मैं सीआरपी और डी टाइमर को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बाकी बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। आपके डॉक्टर आपकी क्लिनिकल स्टेटस के हिसाब से उसको बताएगा। डॉक्टर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग आजकल 9वां 10वां दिन है। मैं ये आपको बता के डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सतर्क कर रहा हूँ कि 9वें 10वें दिन जो साइटोकाइन स्टॉर्म एक आ रहा है कि पहला सीटी कराया था तो इट वाज 1/25, और 9वें 10वें दिन अगर सीटी करा रहे हैं तो वो 24/25 आ रहा है। दिस डजंट मीन कि आपको 3 बार 4 बार 5 बार सीटी कराने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, क्लिनिकल स्टेटस, क्लिनिकल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने डॉक्टर को एक एक कुछ भी डिफरेंस आता है, सपोज करिए 5वें दिन तक आपका सैचुरेशन अगर 98 99 था, छठे दिन अगर आपका सैचुरेशन 94 हो जाता है और फीवर फिर से आ जाता है, वो हाई ग्रेड बना हुआ है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकेशन वो फीवर परसिस्ट कर रहा है। अगर कॉफ जो पहले इंटरमिटेंट था अब वो एकदम रेगुलर हो गया है, खांसना शुरू हो रहे हैं कि तो आधे आधे घंटे तक खांस रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को बताइए, वो जरूर बताएंगे। 10वें 11वें दिन के बाद से ये बीमारी अमूमन चली जाती है, जितना डैमेज इसको करना 10वें 11वें तक ये डैमेज कर चुका होता है। दूसरी बात जो आपने वेव की कही, मैं ये मानता हूँ हम अभी सतर्क हो जाएं, हमारी चीजें अब से सारे हम लोग ले जो जो प्रिकॉशन सरकार बता रही है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अगर हम वो करते चलें, जहां अगर जरूरत नहीं है तो बाहर ना निकले, तो ये सारी चीजें अगर कहें तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी वेव है वो ना आए, और अगर आए तो बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। तीसरा जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स की बात की, देखिए अवेलेबिलिटी का इशू है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जिनके पास एक्सेस है वो उसको होल्ड करके ना रखें, ना तो दवाइयां आप स्टॉक में रखें, ना तो ये होल्ड करके रखें। अगर हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रहें, जो ये एक्सरसाइजेस बताई जा रही हैं इनको आप रेगुलर बेसिस पे करें, बीमार होने तक का वेट ना करें, अगर आपका खान पान ठीक है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डरने की जरूरत है। देखिए अगर क्राउडेड जगहों पे अब अगर हम जाते हैं, और देखिए बहुत सारे हम में से लोगों की आदतें रहती हैं कि हम कभी नाक पे उंगली डाल रहे हैं, चेहरे पे डाल रहे हैं, या हम जब मार्केट्स में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो वो बेचारे दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, या जब बातें करते हैं हमारे साथ बाकी भी ग्राहक रहते हैं जो सब्जी की दुकानों पे हर जगह वैसे सिविक बॉडीज कह रही हैं कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, बाकी चीजें करें। क्राउडेड जगह पे फेस शील्ड आप जरूर लगा सकते हैं, तो जो स्प्लैश आता है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा, जैसे घर में है, जैसे मेरी सिस्टर को हो गया, तो क्या हमें बच्चों को भी लगा के रखना चाहिए? घर में मास्क जरूरी है क्या? अगर घर में कोई पेशेंट है ओके, तो पेशेंट भी एक सर्च लगाएं और बाकी लोग भी मास्क लगा के रखें, ये बेटर रहेगा। और पेशेंट तो मैक्सिमम 8 घंटे तक एक सर्जिकल मास्क को लगा सकते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड कर दें और दूसरा मास्क लगा लें। ठीक है। अब जैसे सब नॉर्मल है तो घर में मास्क लगाने की जरूरत है क्या? अगर घर में कोई पेशेंट नहीं है तो मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या फिर इमरजेंसी अपनी ड्यूटीज में एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, या बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी तरीकों की टीचर्स भी आप देखने को होगा टेस्टिंग सेंटर्स पे हैं,
हाँ जी, हाँ तो जी। आप अपने घर पे प्रिकॉशनरी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत सारी बीमारियां हैं, तो हाँ आप जी। 3 चीजें कर सकते हैं जो हम लोग भी कर रहे हैं। डाइनिंग एरिया में साथ में मत बैठिए, लिविंग रूम में साथ में मत बैठिए, और अवॉइड करिए कि आप सेम बाथरूम या वॉशरूम यूज करें। तो हमें ये समझना होगा कि अगर एक बार कोविड होके रिकवर हो गया है, अगर बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं है, जो लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज नहीं बन पाई या इनसफिशिएंट अमाउंट की बनी है, और वो किसी हाई वायरल लोड वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको कोविड होने के चांसेस बिल्कुल हैं। दूसरी बार जब कोविड होता है, अब ये बताना कि वो ज्यादा डिटेरेट होगा या वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। जो लोग मैंने इसमें देखा है कि अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन जब करते हैं, तो प्रोग्नोसिस हमेशा बेटर होता है। अगर आप अपने इनिशियल अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे, तो हो सकता है आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो अपने कोई भी सिम्टम हो, अब तो सबको लगभग सिम्टम्स पता है कोविड के क्या क्या होते हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। और अगर अर्ली इंटरवेंशन होगा तो जरूर इसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो वैक्सीन को लेके भी बहुत सारा चल रहा है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो अगर आप मुझे मौका देंगे तो 2 मिनट में इस पे बोलना चाहूंगा। प्लीज। थैंक यू सर। देखिए सर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है। दोनों की एफिकेसी 70 to 80% है। तो बिल्कुल आप ऑप्शन ना दे किसी को कि मैं यही आएगी तो लगवाऊंगा, कोविशील्ड ही लगवाऊंगा या कोवैक्सीन ही लगवाऊंगा। हाँ, अब जो ड्यूरेशन है, जो प्राइमरी वैक्सीन डोज होता है कोवैक्सीन में, उसके लगने के 4 हफ्ते में हम दूसरा बूस्टर डोज ले लेते हैं। कोविशील्ड में ये देखा गया है, क्योंकि देखिए अभी भी स्टडीज चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो जैसे जैसे उसके रिजल्ट आते हैं, वैसे वैसे मॉडिफिकेशन और चीजें और अपडेट होती जा रही हैं। क्योंकि डे बाई डे कोविड हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और आज हम बहुत अच्छी स्थिति में है, ट्रीटमेंट वाइज भी और इस इलनेस को समझने के उसमें भी। तो ये देखा गया है कि अगर इसको 4 हफ्ते से बढ़ा के, अगर 6ठे हफ्ते से लगा के 8वें हफ्ते में सेकेंड डोज, जो बूस्टर डोज है, वो लें, तो कहीं ना कहीं जो इसकी एफिकेसी है वो और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने 4 हफ्ते में ले लिया, जैसे हम लोगों ने भी 4 हफ्ते में लिया है, तो इसमें कोई ऐसा आप बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि आपके अंदर कम एंटीबॉडीज बनेंगी। Dear teachers, we are fortunate to have Dr. Geetanjali Kumar. आई थिंक उनको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनका यहाँ पर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। शी इज ए नेशनल पर्सनालिटी and her acceptance to be the part of this webinar really matter a lot to all of us. Geetanjali ma'am, please. सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आगाज करते हैं पहले थोड़ा सा शुक्रिया के सिलसिले से एनडीएमसी के डायरेक्टर जिन्होंने कंसेंट दिया इस प्रोग्राम के लिए और मेरे नाम को एंडोर्स किया, उनके उस बात के लिए उनका धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश, he approached me and it was very I would say कि it was a very pleasant surprise कि लोग बिछड़ जाने के बाद भी याद रखते हैं। और आज के कोरोना टाइम्स में तो ये बहुत अच्छी बात, सुखद सा एहसास है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट प्लेजेंट फीलिंग कि कहीं ना कहीं जो घट रहा है वो घटता चला जा रहा है, और उसके घटते 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 हमारे मन की खुशी, हमारे मन का चैन घटने लगा। कुछ पल होते हैं जो अंधेरा बढ़ा देते हैं। There is nothing to look forward to, and this kind of udasinta, when we don't have anything to look forward to, a sense of hopelessness is a very unhealthy feeling. तो बहुत जरूरत है कि हम उम्मीद का दामन पकड़े रखें। वो कहते हैं ना, अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, सोचा था कुछ, किया कुछ और, मिला कुछ। इस माहौल में, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, इसे शायद आज की दुनिया कहते हैं। कितनी अजब दुनिया, कितनी गजब दुनिया है, लेकिन हम सब इस दुनिया में साथ साथ। साहिल पे बैठ के सोचता हूं मैं आज, साहिल पे बैठ के सोचता हूं मैं आज, कौन ज्यादा मजबूर है, वो किनारा जो चल नहीं सकता, वो किनारा जो चल नहीं सकता, या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। तो चलिए आज इस बात का चयन करें अपने मनों में कि हम क्या हैं,
वो किनारा जो चल नहीं सकता, या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। So you and I will make a choice for ourselves. हर फैसला जो आप और मैं लेते हैं अपने जीवन में, वो फैसला ये तय करता है कि हमारे आने वाले पल कैसे होंगे। वो सुखद होंगे, उनमें कुछ अच्छा होगा, या उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। ये तय करने की कैपेसिटी किसी और में नहीं होती, आप में और मुझ में होती है। तो आज समय आया है कि आप और हम वो हमदर्द बने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की बात को समझ सके। वो बातें जो हमसे करते हैं, वो बातें जो हमसे नहीं करते। मैं कुछ पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि इंसान इंसान को क्या दे सकता है? इंसान इंसान को आज के दौर में सिर्फ वक्त दे सकता है। वक्त बेवजह दीजिए, वक्त बेहिसाब दीजिए। वक्त जितना देंगे, वक्त आपको लाजवाब कर। और जब हम वक्त बांटते हैं एक दूसरे के साथ, तो रिश्तों में बहुत बहुत मिठास बढ़ती है। और ये मौका है हमारे पास कि हम अपने रिश्तों में मिठास बना सकें। मेरा मन उदास है, मेरे मन में खुशी नहीं है, आज मेरा मन कुछ करने को नहीं कर रहा है। इस तरह के जब विचार आपके मन में आए, तो इन विचारों से लड़िए मत, इन विचारों को दुत्कारिए मत, इन विचारों को एक्सेप्ट तो कीजिए। इन विचारों को एक्सेप्टेंस देने के बाद फिर हम इन विचारों को बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आज के डिफिकल्ट टाइम्स में सिर्फ 2 ही अल्फाज हैं जो हमारे नैया को पार लगा सकते हैं, और वो क्या है? सब्र और शुक्राना। मेरे मन का तो शुक्राना, उसके मन का तो सब्र। जब मेरे मन का नहीं हो रहा तो मुझे सब्र करना है, मेरे मन का हो जाए। 10 दिन कहा था डॉक्टर साहब ने, अब 10 दिन का 12वां दिन आ गया, लेकिन फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही, क्या करूं? ये सोच सोच के, ये सवाल पूछ पूछ के, टेलीफोन पर एक दूसरे से, किसी और डॉक्टर से बात करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एनरोल करके, गूगल माता से प्रसाद लेके, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। खांसी शायद और वक्त लेगी, काढ़ा और पीना होगा, स्टीम शायद लेनी होगी, गर्म पानी से गार्गल्स करने होंगे। मतलब जब भी एक समस्या की घड़ी आती है, उस समस्या का निदान एक प्रॉपर तरीके से होता है। हम आनन फानन में कुछ नहीं कर सकते। किसी ने बहुत खूब कहा है, व्हाट वी थिंक वी क्रिएट, व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट, व्हाट वी इमेजिन वी बिकम। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं, जब कोई आपका खैर खैरियत पूछे, जब आपका हाल चाल पूछे, तो कहिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब हम अपने दुखों की कहानी सुनाने लग जाते हैं, तो हम इस यूनिवर्स में, इस संसार में नेगेटिव वाइब्स डालते हैं। इसलिए ये बड़े बूढ़ों की बात, जो मेरे घर में मेरी नानी भी कहा करती थी, जिसे मैं अपने जीवन का मूल मंत्र मानती हूँ, कि हम जो इस यूनिवर्स में डालेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया आज नहीं तो कल हो जाएगा। इसलिए जो आप सोचें, जो आप महसूस करें, जो आप इमेजिन करें, वही आप वैसे बन सकते हैं। और इस सब के बीच में अगर आपके विचार आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो अपने को व्यस्त रखने की कोशिश करें, क्योंकि व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के पास किसी और चीज के लिए समय ही नहीं होता। व्यस्तता उसको उन सवालों के पास जाने ही नहीं देती। तो बहुत जरूरी है कि हम एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने आप को व्यस्त कर सकें, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स डू नॉट लास्ट, बट डिफिकल्ट पीपल डू। एंड डिफिकल्ट पीपल आर व्हाट? are the ones who are able to go through, bear those difficult times with lots and lots of lessons of life. और ये lessons of life जो है ना, वो trial and error से आते हैं। किसी की कोई कही हुई बात मैंने आजमा के देखी, मुझसे हो जाएगी, मुझसे नहीं भी होगी। तो नहीं भी होती है तो हमें हैरान परेशान नहीं होना, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कुछ देता है। कभी सिला देता है तो कभी सबक देता है। तो जब सबक देता है तो सबक में भी हमें घबराना नहीं। तो मैंने कहीं ना कहीं, जब मैं इन चीजों पे सोचती हूँ, तो मैंने 7 सेट ऑफ वर्च्यूज आइडेंटिफाई की, कि इन 7 सेट ऑफ वर्च्यूज के साथ अगर हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने जीवन को सेंस ऑफ होपलेसनेस से होपफुल बना लेते हैं।
सबसे पहले क्या है, that how do I use my ज्ञान, मैं अपनी नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ। अब डॉक्टर सुमित ने हमें इतनी सारी नॉलेज दी ना, हाउ डू आई यूज दिस नॉलेज। अब इस नॉलेज से मुझे पता है कि मुझे ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना है ओनली इफ देयर इज अ कोरोना पेशेंट। अगर मैं यूं ही हर वक्त अपने घर में हर मेंबर का ऑक्सीजन लेवल चेक करने लग जाऊंगी तो वो बेवकूफी रहेगी, गलती रहेगी। सो मेरे पास नॉलेज है, मैं उस नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करती हूँ। पहली वर्च्यू है नॉलेज। The second virtue is buddhi, intelligence. Now knowledge and intelligence work completely. ये एक combination बनता है। Knowledge without intelligence is also futile. So knowledge और intelligence के साथ फिर आती है humility, जिसको हम विनम्रता कहते हैं। विनम्रता के साथ जुड़ता है आपका courage, भीतर का साहस, और फिर भीतर के साहस के साथ जुड़ती है आपकी इच्छा शक्ति किसी के लिए कुछ अच्छा करने की, to help somebody, और इसके साथ जुड़ती है योर यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, और इस ऑनेस्टी के साथ आप जुड़ता है फेथ इन गॉड। अब गॉड एक सुपर पावर है, एक एनर्जी है, एक स्टैचू है, एक चेहरा है, कुछ भी है, लेकिन इट इज आवर इटर्नल फेथ। सो अगर हम इन 7 वर्च्यूज को अपने जीवन में धार लें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। जब वक्त बुरा है तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे, जब वक्त अच्छा आता है तो हम मदद करेंगे। सो मेहनत और मदद दोनों साथ साथ चलता है, और इन दोनों को साथ चलाने के लिए आपकी और मेरी नॉलेज और आपकी और मेरी विजडम जो है, मेरी इंटेलिजेंस जो है, ये हमारा साथ देती है। और जीवन के इस मैराथन में जब हम दौड़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि लौट आएंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहान अभी और है। And thank you so much that you really accepted our proposal and to be the part of this webinar. And we are very much sure that all the audience must have learned a lot from you. And so far as the positive attitude is concerned, yeah, as you have already said, a positive attitude एक गोली नहीं है और खाली और positive attitude बन गया. It takes time. So Anjali ma'am, हम सबको कोई एक मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, कंक्लूजन में, प्लीज। मेरा मैसेज तो यही है कि जिंदगी से इश्क करते हैं, ये हमारा महबूब है, कभी रुलाएगा कभी हंसाएगा, लेकिन है जिंदगी तुझसे इश्क है तो है। वेरी गुड मैम, ब्रिलियंट मैम, ब्रिलियंट। आई थिंक ये जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है, ये शायद हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन के काम करेगा, और जब भी हम हारेंगे थकेंगे तो शायद इस स्टेटमेंट को याद करेंगे तो शायद एनर्जी मिल जाएगी हमको कुछ। डायरेक्टर सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, और बहुत अच्छा वेबिनार कराने के लिए डॉक्टर मदान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर प्लीज। और आज जैसा कि मैंने देखा कि काफी ओवर 450 पार्टिसिपेंट 476 नंबर था सर, हमारे साथ रहे थे जी, और अभी भी लगभग 277 के आसपास लोग हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जो भी बातें हुई हैं उनको आप लोग याद रखिए और उनको आगे फॉरवर्ड करिए अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ। सारे हमारे जो टीचर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप उनके बच्चे और पेरेंट्स के साथ बने हुए हैं। उनको भी अगर कोई परेशानी आती है, कोई बात आती है, तो उनको भी आप लोग हल करने की कोशिश करिए। और ये जो प्रयास हम लोगों ने किया है, इसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और भी नए तरीके के स्पीकर्स को और नई चीजों को लेकर के आप लोगों के साथ आएंगे। बस आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, thank you so much, and secondly, especially for showing concern and sensitivity for each and every one of the education departments. Really, sir.